Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I am back after a so long time period, and thanks for waiting for me. And I during that time I received many messages from many students. They were waiting for my new upcoming videos. So I am going to share this video for all of you, particularly those who were doing message me for the uploading of the new content. Thank you so much for appreciating and showing your respect towards my channel. Thank you so much. अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, then please do subscribe. That will be giving a very positive gesture from your side, and that will make me more motivated towards that content production. Thank you so much. So आज हमने करना है reproduction का. You all are very much well familiar that no organism is going to live forever. So that is the basic reason that production of new organism is required to prevent the extinction of that particular species. So reproduction is basically that is going to make sure the continuity of the life for that particular species. Organisms, they are going to reproduce their own kind. That is the basic purpose of the reproduction. So whenever the question comes, you should be about the reproduction, that why the reproduction is important, what the reproduction is. You are going to write all this content. No organism is going to live forever, and to ensure the continuity of the species, and organisms are going to produce their own kind. So that is the purpose of the reproduction. Reproduction is of two types, asexual one and the sexual one. As the name shows, that asexual mean absence of the sex or the gender, like male or female. In the case of asexual reproduction, only one parent will be involved. There are not two parents. There is basically no gender. There is no female or male organism over there. Only one parent will be. Okay, and that definitely parent is going to produce its own kind. And sexual reproduction, that is involving the gender, male and female parts. We will be discussing these two terms in case of the plants in this chapter in detail. Okay, the main important thing you should be remembering is that reproduction with the seed is always known as the sexual reproduction, because whenever the seeds are going to be produced, they are going to be produced through the male and the female part. We will be discussing all that content in detail in upcoming slides and upcoming lecture. So that particular seed formation is involving basically male part and the female part. एंड दैट इज नोन एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जहां कहीं भी आपने देखना है कि सीड इन्वॉल्व हो गया है, आपको याद रखना है कि वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होगी. ठीक है, और वो रिप्रोडक्शन जिसमें सीड इन्वॉल्व नहीं है, सच लाइक दिस प्लांट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक प्लांट है, मेन पेरेंट प्लांट है, जिसकी कुछ ब्रांचेस आगे सॉइल में जा रही हैं एंड दे आर गोइंग टू मेक अप अदर लीव्स. सो दैट टाइप डेफिनेटली इसको हम ग्रोथ भी कहते हैं, बट that particularly is involving a technical process which is known as the vegetative propagation. और इसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करने वाले हैं. This is a type of the reproduction which is happening without seed from only the single parent plant. And this is known as the asexual reproduction. और asexual reproduction का जो second name है, that is the vegetative propagation. Root, stem and leaves are used to reproduce one or more new plants. In case of the vegetative propagation, plant का कोई भी part आप ले लेंगे, like वो root हो सकती हैं, stem हो सकती हैं, वो leaves हो सकते हैं, they are going to make up an other plant, जिसको हम daughter plant भी कह सकते हैं. And all that is happening definitely in nature, जो हम naturally भी हो रहा है, but human, they are going to use the vegetative propagation for their own benefit. And so this process of vegetative propagation is also being done by the human and under the artificial condition, and that can be artificial or the natural one, because there will be some definitely plants which are growing themselves in the nature at any area of the earth, but human, they are using this property of the nature, the vegetative propagation of the plant. That property is being used by the human for artificial purposes.
Okay, just see that here you can see the potato and the buds, they are going to sprout out. That basically is the single parent is over there, and the new plants, the, let's say you are looking at the three plants over here, so three plants are going to be grown from the same parent. That basically is the type of asexual reproduction. And in the asexual reproduction, as that is mentioned, one parent is only involved. And there definitely, whenever there is one parent, so ultimately there is no formation of gametes is being done. Whenever there is no formation, जब gametes ही involved नहीं है, तो fusion तो बहुत दूर की बात रह जाती है, because only one parent is over there. एंड द गैमीट्स, जहां पे भी आपने देखना है गैमीट्स का जिक्र हो प्लांट्स के लिए पर्टिकुलरली, दे आर द पोलन ग्रेन्स, एंड दैट ऑफ द फ्रॉम द फीमेल पार्ट, दैट इज द ओव्यूल, उसके अंदर फीमेल एग होगा. दीज आर द गैमीट्स फॉर मेल एंड द फीमेल पार्ट. जहां भी गैमीट्स इन्वॉल्व होंगे, they are going to they are going to reproduce through the sexual reproduction. वो sexual reproduction में involve हो जाएंगे. अब सीड फॉर्मेशन मैंने आपको पहले बताया कि सीड में हमेशा मेल और फीमेल पार्ट इन्वॉल्व होते हैं. मेल और फीमेल पार्ट बेसिकली जो फ्यूज होते हैं, दे आर नोन एज द गैमीट्स. सो गैमीट्स हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे. इसमें कोई प्लांट पोटैटो के अंदर कोई गैमीट नहीं है. उसकी बॉडी के जो कुछ ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स हैं जिनको हम नोड्स कहते हैं, वहीं से न्यू प्लांट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है. सो दैट इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बहुत ज्यादा रिजेंबल करेंगे माइटोसिस के साथ. माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which the body cells are going to divide without changing the number of the chromosomes. Like अगर कोई एक पेरेंट प्लांट है, ठीक है, अगर हम एनिमल सेल की ही बात कर लेते हैं, लेट्स से कि एनिमल सेल में 46 क्रोमोसोम है. माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू जब वो डिवाइड होगा, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही रहेगा. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए 46 आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर क्रोमोसोम है, ठीक है. जब सेल ने डिवाइड होना है, तो उससे पहले इसने अपने आप को डबल कर लेना है. दैट इज गोइंग टू बिकम 92. ओके, अब 92 इस पर्टिकुलर सेल के क्रोमोसोम्स के अंदर, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम अपनी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर 92 हो जाएंगे. नॉर्मली क्रोमोसोम्स हैं 46 सेल के अंदर. जब वो अपनी कॉपी बनाएंगे, दे विल बिकम 92. अब 92 दे आर गोइंग टू डिवाइड इनटू द टू सेल्स, and their chromosome are going to divide equally, making up 46 in the each. Okay, that is how the number of chromosome is going to restore the same as that of the parent cell. तो जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर था, पेरेंट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जितने क्रोमोसोम थे, सेम विल बी रिस्टोर्ड इन द डॉटर सेल्स. देयर इज नो चेंज इन दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अब इसके लिए होना क्या है, सबसे पहले 46 क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस के अंदर, उन्होंने अपनी अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर 92 हो जाना है, डबल हो जाना है. जब डबल होंगे, देन दैट इज पॉसिबल कि वो दो सेल्स में इक्वली 46 की फॉर्म में डिवाइड हो सकेंगे. और ऐसे जितने भी सेल्स बनेंगे, दे आर नोन एज द क्लोन ऑफ ईच अदर. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड इसकी इस पर्टिकुलर सेल डिवीजन की जो एक खास बात है, दैट इज there is no genetic variation occurring in this. All the daughter cells, they are having the same genetic makeup as that of the parent plant. They all are genetically identical. So आपने याद रखना है, they are the clone of each other. That is a keyword. Genetically identical, ये भी एक keyword है, आपने इसको याद रखना है. Chromosomes are not going to be changed. So no genetic variation is going to be observed. That is particularly the mitosis type of cell division. और जो कि asexual reproduction में यही सब कुछ हो रहा है. ठीक है, अगर अभी तक किसी को मेरी कोई कंटेंट बात समझ नहीं आई, यू कैन टेक्स्ट मी, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं. यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स फॉर द क्यूरीज. जैसे जब हमने बोला कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी चेंज, दैट बेसिकली 46 इज द 2n. अब यहाँ पर इस रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर रही हूँ रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. बच्चे आपने याद रखना है, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, लेट से मेरे हर बॉडी के सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है. अब इस 46 में मेरे पास 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं मेरे
फादर से और 23 आ रहे हैं मेरे मदर से। ठीक है, these 23 they are going to make up the 46 of my body cells. So basically ये वाले जो 23 क्रोमोसोम है फादर और मदर के, दे आर इन देयर गैमीट्स, ये गैमीट्स के अंदर होंगे। ठीक है, these will be inside the gametes. ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमीट्स के अंदर हाफ होते हैं, इसको हम लिखते हैं n, दैट इज द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हम इसको हैप्लॉइड भी बोल सकते हैं। हैप्लॉइड मीन हाफ। दिस इज ओ हैप्लॉइड। ओके, सो हैप्लॉइड को हम एन भी बोलते हैं। जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तो 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं, विच इज नोन एज द 2n और द डिप्लॉइड। Okay, diploid number of chromosome or the 2n, and haploid are the nn, which are in the gametes, which are going to fuse together to make up the diploid or the 2n. तो ये बेसिकली जाइगोट बना। अब यहाँ पर जो स्टेज मिस हुई है, जो मैंने आपसे बताया था कि 46 ने अपने आप को पहले अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, यहाँ पर ये पहले हो जाएंगे 4n अकॉर्डिंग टू दिस। अब इसमें यहाँ पे अब मैंने 2n और n के जिक्र क्यों कर रही हूँ बेटा, देखो हर किसी स्पीशी के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। सब स्पीशीज के अंदर सेम नहीं होते। ह्यूमन के बॉडी सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर द 2n, ताकि किसी भी अगर स्पीशी में आपको आ जाता है तो आपके लिए ये चीज जनरल रहे। ओके, देन आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको रिमूव करूं सबको। ओके, so these are the parent cell with 2n number of chromosomes. They are going to divide by mitosis, and two daughter cells are going to form, which are having the same number of chromosomes. Now coming toward the sexual reproduction, that is involving the fusion of two gametes, and whenever the gametes are going to fuse, ultimately the zygote is going to be formed and resulting in the genetically dissimilar offsprings. अब ये डिटेल में आपको किस तरह से हमारे पास जो मियोसिस होती है उसमें किस तरह से जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है क्रोमोसोम के अंदर, ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस राइट नाउ। बस आपने इतना याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेंडर्स इन्वॉल्व होंगे, मेल और फीमेल पार्ट इन्वॉल्व होंगे, विच आर प्रोड्यूसिंग द गैमीट्स। उन गैमीट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। जब वो फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल जितना हो जाएगा, दैट इज द जाइगोट। ओके, एंड ड्यू टू दिस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हमारे पास जेनेटिक डिसिमिलैरिटी आ जाती है ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। और गैमीट्स हमेशा जिस प्रोसेस में प्रोड्यूस होते हैं, दे आर दैट इज नोन एज द मियोसिस। Okay, so these are the sources of genetic variation: crossing over between the homologous chromosome during meiosis, independent assortment of chromosome during meiosis, random fusion of gametes during fertilization and mutation. बेटा ये 4 पॉइंट आप ऐसे ही याद कर लेंगे, आपको ये मेमोराइज करने पड़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी कि हाउ द सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन दे डू वर्क, हाउ दे आर इन एक्शन, ये सारी प्रोसेसेस होते किस तरह से हैं। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही, बट आप लोगों के लिए मैं एक इसकी कंप्रीहेंसिव वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो राइट नाउ अभी आपने सिर्फ इनको याद रख लेना है कि जेनेटिक वेरिएशन हमेशा आती है मियोसिस में, जहां पर गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, जहां पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशन या जेनेटिक डिसिमिलैरिटी एज कंपेयर टू पेरेंट आ सकती है। ओके, सो यहाँ पर अब देखें, अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स, ईच इज कॉल्ड द गैमीट। अब यहाँ पर देखें, दिस इज द 2n, ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाकर डिवाइड हो जाएगा 4n में, और वो 4n फिर 2n में डिवाइड होंगे और 2n से n 4 n's बन जाएंगे। सो n बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर। अब यहाँ पर एक और आपको हिंट दे दूं बेटे, यहाँ पर याद रखना है आपने कि ये यूजली होगा इवन नंबर, और ये जो गैमीट्स के अंदर होंगे वो
ऑड नंबर्स होंगे, जब दो ऑड फ्यूज होंगे तो डेफिनेटली एक इवन नंबर फॉर्म हो जाएगा। आपने ये चीज याद रखनी है। ओके जी। अब गैमीट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व कैसे होते हैं? गैमीट्स जब फ्यूज होते हैं, ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज, बेसिकली हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी टेक्निकल मिस्टेक कर देते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट कह देते हैं हम। बट असल में होता कुछ इस तरह से है कि लेट से प्लांट के अंदर है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन के अंदर एक पोलन न्यूक्लियाई है जो कि फ्यूज होगा फीमेल गैमीट के ओव्यूल के अंदर ओवम के साथ। ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियाई ऑफ गैमीट्स आर गोइंग टू फ्यूज। अब देखो, जब कभी दो गैमीट फ्यूज करेंगे, लेट से इन केस ऑफ, आपको इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि आप वीडियो देख चुके हैं मेरी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर, मेल में स्पर्म है, फीमेल में एग है। देखो, कभी भी स्पर्म एज इट इज पूरे का पूरा एग के अंदर नहीं जाता, वो हमेशा अपना न्यूक्लियस को रिलीज करके फीमेल के ओवम में डाल देता है। ठीक है, कभी भी स्पर्म पूरा अंदर एंटर नहीं होगा एग के। तो दैट इज बेसिकली फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ गैमीट, दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड जो आपने याद रखना है। ठीक है, जब गैमीट्स के न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो चीज फॉर्म होगी, दैट विल बी हैविंग दैट डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद जेनेटिक वेरिएशन, और इसको हम कहेंगे जाइगोट। अब जाइगोट के अंदर इट सेल्फ माइटोसिस का प्रोसेस होता जाएगा और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड होंगे। जाइगोट जो है वो डेवलप होगा एम्ब्रियो में, देन न्यू बॉर्न बेबी के अंदर या एक नए प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगा। सो सबसे पहले फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ गैमीट, दैट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से जो चीज फॉर्म होगी 2n या डिप्लॉयड, दैट इज जाइगोट। जाइगोट में माइटोसिस का प्रोसेस होता जाएगा और यहाँ पे गैमीट्स की जो प्रोडक्शन थी उसमें मियोसिस इन्वॉल्व हुआ था। अब जाइगोट डिवाइड होकर, बार बार डिवाइड होकर ग्रोथ में इन्वॉल्व होगा और साइज भी इंक्रीज होगा, मैस भी इंक्रीज होगा जो एम्ब्रियो होगा उसका, और एक फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। एंड दैट प्रोसेस इज हैपनिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। ओके, अब यहाँ पर आपने याद रखना है, जहाँ पे गैमीट्स इन्वॉल्व हो गए वहां पर जेनेटिक वेरिएशन आनी ही आनी है। इन केस ऑफ प्लांट्स, जब हम फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर ऑफ गैमीट की बात करेंगे तो हमारे पास सीड बनेगा, इस चीज को याद रखना है। सीड्स आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके जी। अब यहाँ पे प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसको कहते हैं। ठीक है, ये डिटेल कंटेंट आपकी स्लाइड पे लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप इसकी रीडिंग भी कर सकते हैं। बट जो चीज मैं आपको दिखाना और बताना चाह रही हूँ कि दीज आर द मेथड बाय स्टोलोन और द रनर्स, बाय स्पोर्स, बाय ट्यूबर्स, बाय बल्ब, बाय ग्राफ्टिंग, ऑल दीज 5 मेथड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स। अब यहाँ पे मसला ये हो रहा है कि मेरे लैपटॉप की बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, आई डोंट नो, इसका फ़ैन का थोड़ा सा इशू आ रहा है और मुझे जल्दी है कि मैं अपनी वीडियो जल्दी से कंप्लीट करके आपके साथ शेयर कर दूं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट मैं फिर आपका एक दूसरा बना लूंगी, ठीक है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस आपने ये 5 नाम याद रखने हैं, बाय स्टोलोन और द रनर्स, एंड दैट मोस्टली हैपन इन द ग्रासेस। ठीक है, ये इसमें एक ही पेरेंट प्लांट होगा, इसकी बेस्ट एग्जांपल है ग्रासेस की। ठीक है, बाय स्पोर्ट्स जैसे कि फर्न्स और मॉसेस के अंदर ये होते हैं, ट्यूबर्स पोटैटोज में होते हैं, बल्ब्स अनियन को कहते हैं, और ग्राफ्टिंग के मोस्ट डिफरेंट टेक्निक है, गार्डनर इसे कॉमनली यूज करते हैं। और इसमें हम इसमें एक ही पेरेंट प्लांट से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, अब याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट प्लांट होगा, एक ही पेरेंट होगा। ठीक है, 2 पेरेंट नहीं होंगे। जब एक ही पेरेंट है तो अल्टीमेटली गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे और जेनेटिकली वेरिएशन नहीं आएगी, ऑल विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। किसके साथ आइडेंटिकल होंगे? पेरेंट के साथ। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, ये प्लांटलेट्स की हैं। देखें, एक मेन प्लांट है, उसके ऊपर प्लांटलेट्स ग्रो कर रहे हैं ऑन द एजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेन लीफ। जब ये गिरेंगे तो एक अलहदा से इंडिपेंडेंट अपना प्लांट बनाकर इसी तरह से दोबारा से रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। ट्यूबर्स अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं और ये जब बर्ड्स इसकी पोटैटो की ग्रो करेंगी तो वो एक न्यू प्लांट में डिवेलप हो जाएंगी। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस कि जब मैंने घर में पोटैटो को ग्रो करना चाहा, आई जस्ट वांटेड, मैंने कहाँ से कट किया जहाँ पे उसकी बर्ड्स मुझे नजर आई थी। बर्ड्स को कॉमनली आई भी कह देते हैं समटाइम, ले मैंने इसे आई कहता है, बट दैट इज द बडिंग रीजन। इन मैंने पर्टिकुलर, मैंने होल पोटैटो को डग नहीं किया,
मैंने क्या किया, आई जस्ट कट इट फ्रॉम द बड एरिया, एक यहाँ से कट कर दिया, एक थोड़ा सा पीस यहाँ से कट करके, एक यहाँ से कट करके मैंने सॉइल में डिफरेंट जगहों पे इसको डग कर दिया। और कुछ अरसे के बाद, तकरीबन 4 मंथ्स के बाद, इसमें से जब ग्रोथ हुई, लीव्स वगैरह निकले ड्यूरिंग विद इन द 4 मंथ, बड़ी जल्दी इसके लीव्स ग्रो कर जाते हैं पोटैटो के, और बहुत अच्छे प्यारे से ग्रीन कलर के होते हैं। और फिर उसके 4-5 मंथ्स के बाद मैंने इसको जब सॉइल को डग किया तो वहाँ पे पोटैटोज थे। बट डिपेंड करता है कि अगर आपके पास सॉइल अच्छी है, नरिश्ड सॉइल है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, या और ज़्यादा अच्छी खुली जगह पर है, तो पोटैटो का साइज इंक्रीज करेगा। अगर आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है तो अल्टीमेटली वहाँ पर जो न्यू पोटैटोज ग्रो करेंगे, दे विल बी ऑफ डिफरेंट और स्मॉलर साइज, डिपेंडिंग अपॉन द स्पेस जिसमें आप उसको ग्रो करें। इन बातों का, फैक्टर्स का ध्यान करना है आपने। ठीक है, ये रनर्स की एग्जांपल है। अबव ग्राउंड जो स्टेम है, दे आर गोइंग टू डिवेलप इनटू द रनर्स, और यहाँ से फिर रनर्स में से एक नया प्लांट, जब वो सॉइल के अंदर ये पर्टिकुलर बड वाला एरिया डिप हो जाएगा या सॉइल के अंदर चला जाएगा, तो वहां से एक नया रनर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। एंड स्ट्रॉबेरीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द स्टोलोन्स और द रनर्स। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आई लाइक स्ट्रॉबेरीज वेरी मच। बड़ी जल्दी खराब होती हैं, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं किसी तरह से इनको अपने पास भी अपने गार्डन में ग्रो करूं। ओके, सी ये एक रनर है। ठीक है, ये यहाँ से जाकर, अब ये जो पर्टिकुलर एरिया था इसका बड वाला, अगर ये नीचे जाता तो ये भी एक डेवलप हो जाता। यहाँ पे भी डेफिनेटली एक ये बड सी होगी जो यहाँ पे सॉइल में डिप हुई, और ये एक नया इसकी रूटिंग हो गई स्टार्ट, और नया प्लांट ग्रो कर गया। ओके, दीज आर द ट्यूबर्स। जी, बल स्प्रिंग अनियन ग्रो करते हैं। आई लाइक स्प्रिंग अनियंस वेरी मच। और मैं एक अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं बेटे, हर प्लांट की ग्रोथ का अपना एक सीजन होता है। यूजली जो स्प्रिंग अनियंस होते हैं वो हमारे पास स्प्रिंग में या स्प्रिंग सीजन में होते हैं, या विंटर सीजन में अच्छे ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, गर्मियों में इनको ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दीज आर, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द वेदर कंडीशंस, हॉट क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट में, या अच्छे इन्वायरमेंट में किस तरह से इनको टेम्परेचर कम चाहिए, हाई चाहिए, न्यूट्रिशन वाली सॉइल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सारी बातें आपने प्लांट की ग्रोथ के लिए याद रखनी होती हैं। ओके जी, अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, इनको डिस्कस करने के बाद आई विल बी वाइंडिंग अप द वीडियो। ओके, बात करते हैं एडवांटेजेस की। डेफिनेटली एक ही पेरेंट प्लांट से ग्रो करना है तो उसमें रैपिड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि दूसरे पेरेंट प्लांट का वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जब सीड्स की फॉर्मेशन, उसमें डेफिनेटली जब प्लांट ने फ्लावर में पॉलिनेशन होनी है, तो उसमें हमारे पास मेल गैमीट का स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होना, दैट टेक सम टाइम। ठीक है, उसके लिए दूसरे पेरेंट प्लांट का अवेलेबल होना भी जरूरी होता है। सो अवेलेबिलिटी मैटर्स अ लॉट। जब इसमें एक ही पेरेंट है तो दूसरे पार्टनर की अवेलेबिलिटी कोई मैटर नहीं रखती, कोई मसला नहीं है उसका, दैट्स वाई इसका रैपिड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, कि जब एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट ग्रो कर जाते हैं तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। जब ओवर क्राउडिंग एक ही एरिया में हो जाएगी, बिकॉज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने कि एक ही पोटैटो से मैंने उसकी जो बर्ड्स थी वो डिफरेंट एरियाज में मैंने कट करके उनको ग्रो करवाया था, तो आई जस्ट प्रिवेंटेड दैट फ्रॉम ओवर क्राउडिंग। ठीक है, अच्छा, अब ओवर क्राउडिंग होगी तो अल्टीमेटली जितने भी डॉटर प्लांट्स ग्रो करेंगे, दे ऑल विल बी कंपीटिंग फॉर द वाटर, स्पेस, लाइट के लिए compete करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अक्सर बच्चे कर देते हैं कंपटीशन फॉर द ऑक्सीजन। बेटा, ऑक्सीजन तो जितनी एयर में, जितनी सॉइल में है उतनी ही लेनी है, वो सबको एक जितनी ही मिलेगी। ठीक है, अदर न्यूट्रिएंट सोर्सेज के लिए आप कह सकते हैं कि लाइक मैग्नीशियम है, लाइक नाइट्रेट्स हैं, उनके लिए वो फिर आपस में compete करेंगे। तो दैट इज द कंपटीशन, जिसकी वजह से अगर जो प्लांट हेल्दी होगा उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, और जिसकी जो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, ठीक है, जेनेटिकली जो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, देयर विल बी सर्टेन रीजन, हम अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं, वो ग्रो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। एडवांटेज क्या है जी, कैन रिटेन डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक। अल्टीमेटली अगर मुझे एक शुगर केन की स्पीशी बहुत जल्दी क्विक ग्रो करती है और बहुत स्वीट भी है, तो मुझे उसकी जो आउटपुट है या उसकी यील्ड बहुत जल्दी मिल जाएगी। मेरे जो डिजायरेबल फीचर्स हैं वो उस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर रिटेन कर जाएंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, बिकॉज ऑफस्प्रिंग आर नॉट जेनेटिकली डिफरेंट, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, सो डिजायरेबल फीचर्स भी मेरे ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर हमारे पास लेट से, जब अगर इस प्लांट को, इस पर्टिकुलर प्लांट को एक ही एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकेगा, अब मैं ऐसे कहीं और ग्रो करने की कोशिश करूंगी तो वहां पर उसके लिए एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं
वो बहुत डिफरेंट हो जाएंगी और उन पर्टिकुलर कंडीशन में वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो डिक्रीजेस द एबिलिटी टू अडेप्ट टू द चेंजेस इन द सराउंडिंग, सो दैट बिकम्स अ डिसएडवांटेज ओवर देयर। अब इसमें हमारे पास एडवांटेज आता है, लार्ज फूड रिजर्व आर प्रोवाइडेड फॉर डॉटर प्लांट बिकॉज सिंगल पेरेंट है, जिस तरह पोटैटो के केस में, पोटैटो के अंदर इटसेल्फ इतने न्यूट्रिएंट्स पैक हैं कि वो एक अलहदा से डॉटर प्लांट्स, बहुत सारे डॉटर प्लांट को ग्रो करवा सकता है। सो लार्ज फूड रिजर्व्स आर अवेलेबल। साथ ही में अगर ये पेरेंट प्लांट, उसमें कोई डिजीज थी दैट वाज नॉट रेजिस्टेंट टू एनी पर्टिकुलर डिजीज, तो वो डिजीज भी डॉटर प्लांट में, ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो जाएगी बिकॉज दे ऑल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ठीक है, सो डिजीज का ट्रांसमिट होना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है कि जो पेरेंट प्लांट को डिजीज थी वही ऑफस्प्रिंग को भी होने का चांस है। ओके, डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सटर्नल एजेंट और अनदर प्लांट, ये जिस तरह से मैंने बताया कि दूसरे पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, सो दैट इज द एडवांटेज फॉर दैट। और यहाँ पर कुछ इनके कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ कमर्शियल बेनिफिट्स हैं कि हम स्पेसिफिक वेराइटीज विद द डिजायर्ड फीचर्स और कंसिस्टेंट क्वालिटी दे कैन बी प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ फ्लावर्स एंड इन केस ऑफ फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। ओके जी, सो ये हो गया। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन में आपको ब्रीफ कर देती हूँ रिगार्डिंग सेग्यूल एंड एसेग्यूल रिप्रोडक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्लाइड वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेग्यूल में हमेशा टू पेरेंट रिक्वायर होंगे, गैमीट्स का फ्यूजन होगा और वेरिएशन आएगी, जबकि ये तीनों पॉइंट आपने इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है एसेग्यूल में, जेनेटिकली सेम होंगे और गैमीट का फ्यूजन इन्वॉल्व नहीं होगा। सो हमारे पास यहाँ पर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आ जाएंगे और इस सेक्सुअल के अंदर जेनेटिकली डिफरेंट जो कि क्लोन्स नहीं होंगे, जबकि ए सेक्सुअल में क्लोन्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। अब मैं अगला लेक्चर जो है आप देख बता देती हूँ आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में है फ्लावरिंग प्लांट्स का। ये इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपकी मोटिवेशन, आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए होगी ताकि मैं अपने चैनल पर कंसिस्टेंटली काम कर सकूं। दुआ में याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।